آج اس ویڈیو میں ہم کیبج بائی پاس کے بعد مریضوں کے لیے ہدایات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹرنم کی حفاظت، وونڈ کیئر، انفیکشن پریونشن، نہانا کیسے ہے، واکنگ اور ایکسرسائز، ڈرائیونگ اور ٹریولنگ، نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم بستری، ہیلدی ڈائٹ، شوگر کے پیشنٹ کے لیے ہدایات، ڈپریشن اور انزائٹی، سلیپ، میڈیکیشن، آپ نے ایمرجنسی 1122 پر کال کب کرنی ہے اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کب کرنا ہے۔ سٹرنم کی حفاظت۔ سٹرنم کو تاروں سے جوڑا جاتا ہے، اس لیے اس کی کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چیسٹ کی ہڈی کو 3 مہینے تک ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے، اس لیے چیسٹ بائنڈر پہننا ضروری ہے۔ ہر وقت بائنڈر یوز کریں، اٹھتے، بیٹھتے اور سوتے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بائنڈر کو کھول سکتے ہیں۔ چیسٹ بائنڈر اپنے سائز کا لیں۔ 3 مہینے تک باریک کام کاج اور 5-10 پاؤنڈ سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں۔ 6 ہفتے تک کسی بھی چیز کو پش یا پل نہ کریں۔ بیڈ سے اٹھنے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی آپ کی مدد کرے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس طرح سے اٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بیڈ کی سائڈ کے پاس آئیں، کروٹ لیں، پہلے ٹانگیں نیچے کریں اور پھر اس طرح سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ بازوؤں کا استعمال نہ کریں، پھر 30 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے اٹھیں۔ 1 2 3 کہہ کر اٹھ جائیں۔ اپنے ہاتھ کو دروازے کے ہینڈل پر رکھیں، لیکن اپنے سینے پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں۔ اپنی باڈی کو دروازے کے ساتھ لگا دیں۔ دروازے کو دھیرے دھیرے سے کھولیں۔ دروازہ بند کرتے وقت بھی اپنے ہاتھ کو شولڈر کو ریلیکس رکھیں۔ دروازے کو دھیرے سے بند کریں۔ اگر آپ کو کوئی مددگار مل سکتا ہے تو ان سے مدد لیں۔ دروازہ کھولنے کے لیے بازو کو بہت زیادہ باہر نہ نکالیں اور باری دروازوں کو کھولنے کے لیے پش یا پل نہ کریں۔ آپ کی چیئر دیوار کے ساتھ لگی ہو۔ چیئر پر بیٹھنے کے لیے اپنی ٹانگیں چیئر کے ساتھ لگائیں۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ رکھیں۔ آرام سے چیئر پر بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے آپ نے چیئر پر نہیں بیٹھنا ہے۔ چیئر سے اٹھنے کے لیے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، پھر 1 2 3 کہہ کر اٹھ جائیں۔ چیئر پر بیٹھنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے کوئی آپ کی مدد کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کرسی سے اس طرح سے نہیں اٹھنا ہے۔ سیڑھیاں تیز نہ اترے اور نہ چڑھیں۔ اپنے بازوؤں سے پش یا پل نہ کریں۔ اس طرح سے آپ نے سیڑھیاں نہ اترنی ہے اور نہ ہی چڑھنی ہے۔ سیڑھیاں آرام سے آہستہ آہستہ ایک سٹیپ چڑھیں۔ چھ ہفتے تک کھانستے ہوئے یا ہنستے ہوئے یا چھینکتے ہوئے چیسٹ کو ایک پلو یا اپنے ہاتھوں سے سپورٹ کریں۔ زخم کی دیکھ بھال۔ آپریشن کے بعد انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے گھر جانے کے بعد پہلے 4 ہفتے تک مہمانوں اور ملنے والوں سے پرہیز کریں۔ زخم کو روزانہ دھوئیں۔ اگر پسینہ زیادہ آتا ہے تو 3 سے 4 بار دھوئیں۔ سرجیکل وونڈ کو صاف اور ڈرائی رکھیں۔ زخم کو بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے۔ زخم پر کوئی بھی کریم یا لوشن نہ لگائیں۔ کپڑے ڈھیلے اور کلین پہنیں۔ عورتیں سرجیکل برا یا انڈر وائر فری برا یوز کریں۔ اب بات کرتے ہیں نہانے کی۔ روزانہ نہائیں، سادہ صابن کا استعمال کریں اور کرسی پر بیٹھ کر نہائیں۔ نہانے کے وقت کوشش کریں کوئی ذمہ دار شخص آپ کے پاس ہو جو ایمرجنسی کی صورت میں مدد کر سکے۔
नहाने के बाद जख्म को अच्छी तरह खुश्क करें। इन चीज़ों से परहेज करें। ना टब में बैठें, ना जकूज़ी में जाएं, ना ट्यूबवेल में नहाएं और ना स्विमिंग पूल में या झील में तैराकी करें। फेफड़ों की देखभाल, लंग्स केयर, सांस और फेफड़ों की बाकायदा वर्जिश जारी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीथिंग, नाक से सांस अंदर लें और मुंह से बाहर निकाल लें। इस तरह आपके फेफड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे। हर घंटे बाद 5 से 10 मिनट ये वर्जिश करें। फिर खांसी करके बलगम बाहर निकालें। 6 हफ्ते तक स्पायरोमीटर की मदद से बाकायदा वर्जिश करें। स्पायरोमीटर से सांस अंदर खींचें ताकि तीनों बाल्स ऊपर उठे। हर घंटे बाद 10 मिनट तक करें। आप ऐसे कर सकते हैं, 3-4 सांस स्पायरोमीटर में लें, 3-4 सांस नॉर्मल लें। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपका जख्म खराब हो सकता है। जख्म खराब होने का इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। स्टॉकिंग, ब्लड क्लॉट से बचने के लिए डॉक्टर की बताई गई स्टॉकिंग 6 वीक तक सुबह से शाम तक पहने। स्टॉकिंग को रात में उतार सकते हैं। स्टॉकिंग को हाफ रोल करके ना पहने, ये खतरनाक हो सकता है। नमाज कुर्सी पर बैठकर अदा करें। ये एहतियात 6 से 8 हफ्ते तक जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग, सुबह शाम 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करें, फिर धीरे धीरे 30 मिनट तक इसे बढ़ाएं। किसी के साथ वॉक करें। कोशिश करें कि हर घंटे के बाद 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए घर के अंदर चहलकदमी करें, सिर्फ बिस्तर पर बैठे ही ना रहें। अगर आपके पास डॉग है तो पहले कुछ वीक्स उसे साथ ना लेकर जाएं। आपने रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, हैवी लिफ्टिंग, हैवी हाउसवर्क नहीं करना है और शोल्डर के एक्सट्रीम मूवमेंट से बचें। वॉक करते वक्त रुक जाएं। अगर सांस में मसला होना शुरू हो जाए, सीने में दर्द हो, सर दर्द हो, मतली हो, ज्यादा थकन महसूस करें, पट्ठों में खिंचाव हो, चक्कर आए या दिल की धड़कन तेज हो जाए। ड्राइविंग और ट्रैवलिंग, 2 महीने तक ड्राइविंग ना करें, 3 महीने तक मोटरसाइकिल ना चलाएं और ना ही इसकी बैक सीट पर बैठें। ऑटो रिक्शा भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि रिक्शे के झटके से हड्डी टूट सकती है। 4 हफ्ते के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। 6 हफ्ते तक कार की सिर्फ बैक सीट पर ट्रैवल करें क्योंकि फ्रंट सीट का एयर बैग नुकसान दे सकता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन, ऑपरेशन के बाद भूख का कम होना और जायके में तब्दीली नॉर्मल है, ये कुछ हफ्तों में बेहतर हो जाती है। जिन लोगों को शुगर नहीं है वो अपनी खुराक नॉर्मल तरीके से खाएं ताकि ऑपरेशन से बहाली में जिस्म को तवानाई मिल सके। इसके बाद हदायत के मुताबिक खुराक का परहेज जारी रखें। शुगर के मरीज खुराक का परहेज अपने डाइट प्लान के मुताबिक करें। अपनी शुगर का बाकायदा चेकअप जारी रखें। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ये आपकी रिकवरी में मददगार होगा। कभी कभी मरीजों के अटेंडेंट मरीज को सूप लाते रहते हैं और खुद बोटियां खा जाते हैं, जिससे मरीज दिन ब दिन कमजोर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। याद रखें, आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए स्टूल सॉफ्टनर यूज करें और बॉल मूवमेंट के दौरान ज्यादा जोर ना लगाएं। डिप्रेशन और इमोशनल सपोर्ट, सर्जरी के बाद डिप्रेसिव फीलिंग या एंजाइटी हो सकती है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये फीलिंग 6-8 हफ्ते तक बढ़ रही हो तो अपने डॉक्टर से मदद लें। हम बिस्तरी, 6 हफ्ते तक आपने हम बिस्तरी से परहेज करना है। अगर 6 वीक्स के बाद हम बिस्तरी में कोई इशू आ रहा है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन और मेडिसिन को चेक करके आपको दवाई देगा। हम बिस्तरी के लिए आपने खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, जैसे कि वाइग्रा, सियालस, टेडेलाफिल, वार्डेनाफिल, अवेनाफिल एक्सेट्रा और हकीम मेडिसिन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। अद्वियात और फॉलो अप केयर, ऑपरेशन के बाद बताई गई दवाएं बाकायदगी से जारी रखें। खुद से कोई भी दवा कम या ज्यादा ना करें। अब बात करते हैं आपने 1122 या इमरजेंसी में रब्ता कब करना है। किसी भी वक्त जब आपको लगे कि आपको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत हो सकती है, मिसाल के तौर पर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हो, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो या आप बेहोश हो गए हो, खून वाली खांसी करें या उल्टी आए, या आपको हार्ट अटैक की अलामत नजर आए, जैसे कि सीने में दबाव या अजीब सा सांस, पसीना आना, सांस लेने में दुश्वारी, मतली या उल्टी, गर्दन, चपड़े, पेट के ऊपर वाले हिस्से या दोनों कंधों या बाजुओं में दर्द, दबाव, चक्कर आना या अचानक कमजोरी महसूस होना,
तेज़ या बेतरतीब दिल की धड़कन हो जाना तो फौरी तौर पे 1122 पे कॉल करें या अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अब बात करते हैं आपने अपने डॉक्टर से रब्ता कब करना है। आपको दर्द हो जो पेन मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक ना हो, आपके स्टिचेस खुल गए हों या आपका जख्म खुल गया हो, जख्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो या पस निकल रही हो, या आपको इन्फेक्शन की अलामात हों जैसे दर्द, सूजन, गर्मी या रेडनेस में इजाफा या बुखार, आपकी टांग में खून के क्लॉट की अलामात हों, अगर आपकी टांग से कोई वेन हटाई गई है तो हीलिंग के दौरान हल्का दर्द और सूजन हो सकती है, लेकिन ब्लड क्लॉट की अलामात किसी और जगह हो सकती हैं जैसे पिंडली, काफ मसल, घुटने के पीछे, रान या ग्रोइन में दर्द। दिल की कमजोरी की अलामात जैसे पाँव, एंकल या टांगों में सूजन, अचानक से वजन बढ़ना जैसे एक दिन में 1 से 1.3 केजी या एक हफ्ते में 2.5 केजी बढ़ना। अपने डॉक्टर को फौरन कॉल करें या मेडिकल केयर हासिल करें। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं तो सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी नई नालियाँ जो दिल में लगाई गई हैं वो फिर से ख़राब हो जाएंगी। आपकी रिकवरी अल्लाह की तरफ से एक नई ज़िंदगी का तोहफा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इन हदायत पर अमल करें ताकि आप जल्दी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। शुक्रिया। या अल्लाह, जो आपने दिया और जो आपने नहीं दिया और जो आपने देकर ले लिया उस पर शुक्र, क्योंकि जो आपने दिया वो आपकी नेमत और जो नहीं दिया वो हिकमत और जो देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान। ए अल्लाह, हमें हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।